Good morning, students. Today we are going to start our lecture. Okay. First, we will revise our previous lecture, in which we read about our environment, ecosystem, the component of ecosystems. What were the component of ecosystem? Biotic component and abiotic component. And what is ecosystem? Ecosystem is the self-sustained area in which the biotic component and abiotic components interact with each other. Okay, then ecosystem is of two type: natural ecosystem and artificial ecosystem. Natural ecosystem like forest, okay, and the artificial ecosystem is aquarium, garden, lake. These are the artificial ecosystem. Then we read about the biotic components. Biotic components includes the non biotic components includes the living organisms, and living organisms were further classified into three categories, that was producers, consumers and decomposers. What are producers? Producers are the green plants which produce. And how do they take energy? They take energy from the sunlight. Okay, green plants. Then we read about the consumers. Consumers were further classified into herbivores, carnivores, omnivores. Okay, and then we read about the decomposers. Decomposers are those who decomposes the all the living organisms when they get die. अच्छा, फिर उसके बाद हमने किया था फूड चेन. फूड चेन में व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन इज दैट चेन इन विच एन ऑर्गेनिज्म eats someone and is itself is eaten by some other living organism. That constitute the food chain. Okay, give me any example of the food chain. Let me give you an example. Like grass is eaten by the grasshopper, and grasshopper is eaten by the frog. Frog is eaten by the snake, and snake is eaten by the eagle. It constitute a food chain. Then we read about the characteristics of the food chain. What is the characteristics? The producers always occupy the first step in the food chain, and each step of the food chain is called the trophic level. जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फर्स्ट लेवल पर आती हैं, एंड देन द प्रोड्यूसर्स आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर. देन स्टार्ट्स द कंज्यूमर. Consumers are further classified into primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. ठीक है, and in a food chain there are only 4 to 5 trophic level, only 4 to 5 steps. Why? Because the energy, only the 10% of the energy is transferred from one trophic level to another trophic level. क्योंकि 10% एनर्जी ही सिर्फ आगे ट्रांसफ़र होती है, एंड 90% एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड बाय द दैट ट्रॉफिक लेवल इटसेल्फ. वो अपने आप उसको यूज़ करती हैं, और सिर्फ कितनी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होती है? 10%. केवल 10% एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, इसीलिए 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल के बाद एनर्जी बहुत कम रह जाती है. That's why a food chain only have the 4 to 5 trophic levels. Okay. अच्छा, कल हमने एक बात डिस्कस नहीं की थी, that is the flow of energy is unidirectional. What does it mean? The flow of energy is unidirectional. Uni means same. Only the energy flows in one direction. It never goes in the backward direction. जैसे कि जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, दे नेवर कंज्यूम द कंज्यूमर. प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाते हैं, प्लांट्स कभी भी हर्बीवोर्स को नहीं खाएंगे. इसी तरह से हर्बीवोर्स आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर. हर्बीवोर्स विल बी कंज्यूम्ड बाय द कार्निवोर्स. कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाएंगे, कभी भी हर्बीवोर्स कार्निवोर्स को नहीं खाएंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जो एनर्जी है वो हमेशा किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, यूनी डायरेक्शनल, सिंगल डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि बाई डायरेक्शनल है कि हमारा बैक भी हो सकता है। उसके बाद हमने किया था फूड वेब के बारे में। व्हाट इज फूड वेब? द इंटरकनेक्शन ऑफ द फूड चेन। ऑल द फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड, दैट्स वाई इट कॉन्स्टिट्यूट ए वेब। वेब मीन्स नेटवर्क। नेटवर्क का क्या मतलब है कि जो सारी फूड चेन्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये हमने कल सारा स्टडी किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, देखो बच्चों, जब फूड के अंदर जो प्लांट्स हैं हम उसके ऊपर जैसे डीडीटी का छिड़काव करते हैं या कोई भी हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं, वो जो पेस्टिसाइड्स है वो प्लांट्स के ऊपर हमने डाला। वो पेस्टिसाइड्स जब प्लांट्स के ऊपर हम डालते हैं तो हर्बीवोर्स उन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। वो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स किसके अंदर एंटर कर गया? प्रोड्यूसर्स के अंदर। प्रोड्यूसर्स के बाद वो कंज्यूम किए जाते हैं कंज्यूमर से। तो वही जो है पेस्टिसाइड्स है वो इस तरह से फूड चेन में आगे आगे ट्रांसफ़र होता रहता है और हर लेवल पर उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मीन्स एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ non biodegradable substance in a food chain, that is known as the biological magnification। फूड चेन के अंदर जब भी कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंटर करता है तो उसकी हर लेवल पर उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है एंड दैट इज नोन एज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आगे है हम ओजोन लेयर के बारे में अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, हमने ये किया था कि हमारी एक्टिविटीज़ से कैसे इफ़ेक्ट होता है। जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उससे बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। जैसे हम कटिंग करते हैं ट्रीज़ की या हमारी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं या और गैसेस रिलीज़ करते हैं, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है? इसका जो इफ़ेक्ट है एक हमारे पड़ता है ओजोन लेयर पर। What is ozone layer? Ozone layer is a layer which is made up of ozone molecule. Ozone molecule is a triatomic oxygen atom. ऑक्सीजन के 3 एटम जब कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है ओजोन मॉलिक्यूल एंड all the molecule constitute the ozone layer। ये ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में, अदरवाइज इट इज़ ए वेरी डेडली पॉइजनस गैस, हमारे लिए बहुत पॉइजनस है, बट इट परफॉर्म्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। व्हाट इज दैट? इट इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर इज ए लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वहाँ पर ये प्रेजेंट है और ये सन की हार्मफुल रेज को अर्थ पर आने से रोकता है। इसको क्या कहते हैं? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर अगर क्या होगा, अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज या वो हार्मफुल रेज अर्थ तक पहुँच जाती हैं तो उससे एक्वेटिक लाइफ को भी नुकसान पहुँचता है, एक्वेटिक लाइफ को, प्लांट्स को नुकसान पहुँचता है और वो हमारे लिए भी उसके बहुत सारे डिजीज़ क्रिएट करते हैं। जैसे कि वो हमारे लिए क्या डिजीज़ क्रिएट करते हैं, जैसे कैंसर हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, कैटारैक्ट डिजीज़ हो जाती है, इम्यून सिस्टम बॉडी का वीक हो जाता है, कैटारैक्ट डिजीज़ हो जाती है, अस्थमा हो जाता है। ये डिजीज़ हैं जिसकी वजह से, जो किसकी वजह से हो जाएंगी? अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से। और उन अल्ट्रावायलेट रेस को अर्थ पर आने से कौन रोकता है? ओजोन लेयर। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ओजोन लेयर फॉर्मेशन होती कैसे? देखो, ओजोन लेयर में
अल्ट्रा वायलेट रेस जो आती हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, अल्ट्रा वायलेट रेस के आने से ऑक्सीजन के एटम O2 इट विल गेट ब्रेकन इनटू द O+O, मतलब ऑक्सीजन के एटम में सिंगल ऑक्सीजन का एटम क्रिएट हो जाएगा। वो सिंगल ऑक्सीजन का एटम जब ऑक्सीजन गैस के साथ दोबारा से कंबाइन करता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है? ओजोन लेयर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ये तो है इसकी फॉर्मेशन। अब इसकी डिप्लीशन हम कुछ समय पहले ये देखा गया कि ओजोन लेयर जो है वो थिन होती जा रही है। वो थिनिंग किस वजह से होती है? सेम जैसे इसकी फॉर्मेशन है वैसे इसकी डिप्लीशन होती है। इसकी डिप्लीशन होती है क्लोरीन गैस की वजह से, क्लोरीन एटम की वजह से। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन प्रोड्यूस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। एक सिंथेटिक केमिकल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? हम अपने रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ करते हैं, एसी के अंदर वो यूज़ होता है। तो इसकी वजह से इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन दीज आर आल्सो नोन एज द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इनको कहते हैं, क्योंकि ये ओजोन की लेयर को क्या करती हैं? डिप्लीट करती हैं, उसको धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। तो अब फिर गवर्नमेंट ने इस पर क्या लगाया है? बैन लगा दिया है, ताकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के यूज़ को कम किया जा सके। ठीक है, ये हमारा है ओजोन लेयर एंड इट्स फॉर्मेशन एंड इट्स डिप्लीशन। द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर इज नोन एज द ओजोन होल। उसको कहते हैं ओजोन होल। ओजोन होल का मतलब ये नहीं कि उसमें छेद हो गया। ओजोन होल का मतलब है कि द लेयर ऑफ द ओजोन लेयर, द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर इज नोन एज द ओजोन होल। Okay, next our topic is, yesterday we read that we produce the garbage, and garbage is of two types, biodegradable and non-biodegradable. Today we will discuss how we can dispose that garbage. हम उसको कैसे डिस्पोज करते हैं, हम क्या कर सकते हैं गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए। आपसे 10th के बोर्ड में मेन यही कंसंट्रेट, जो ये एनवायरनमेंट चैप्टर है, इसमें स्टूडेंट की वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर में से पूछा जा सकता है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि एक 10th का बच्चा इस बात को जवाब दे सकता है या नहीं कि जो हम गार्बेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो आप सबसे पहले उसमें से क्या सोचते हो कि हमें क्या करना चाहिए गार्बेज को? सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम उस गार्बेज को क्लासीफाई करें, दोनों को अलग अलग करें, सेग्रीगेशन। The first step is the segregation of the garbage. We will separate the garbage into two parts, the biodegradable and the non-biodegradable, दोनों को अलग अलग कर दें। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है कि हम 3 R's को यूज़ करें। What is 3 R's? 3 R is the reuse, reduce and recycle। हमने 3 स्टेप करने हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपने वैसे भी लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि रिड्यूस मीन्स यूज़ लेस, हमें लेस यूज़ करना चाहिए। हमारी जैसे लाइटें, हम लाइटें जलाते हैं फिर हम उसको वो बंद नहीं करते, या कुछ भी हम वाटर है उसकी हम अननेसेसरली उसको वेस्ट करते रहते हैं। रिड्यूस, उसको कम यूज़ करना। और दूसरा है रीयूज़। रीयूज़ मीन्स दोबारा से उसको यूज़ करना। ऐसा नहीं है कि अब हम जैसे कंटेनर लाते हैं, उसमें किचन में हम कंटेनर हमारे यूज़ हो गए, तो हम उसको जब यूज़ करने के बाद हम दोबारा, ऐसा नहीं कि उसको फेंक दो, उसको हम प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा है रीयूज़। और नेक्स्ट है हमारा रिसाइकल। रिसाइकल मीन्स री मीन्स दोबारा, साइकिल मीन्स उसको यूज़ करना, साइकिल की फॉर्म में नेक्स्ट प्रोडक्ट में उसको यूज़ किया जा सकता है, दैट इज़ नोन एज द रिसाइकल। पर इनमें सबसे बेस्ट है हमारा रीयूज़, क्योंकि रिसाइकिल इट कंज्यूम्स द एनर्जी।
रिसाइकल कंज्यूम्स द एनर्जी, मशीनरी से होता है, इसमें एनर्जी यूज़ होती है, इसकी वजह से हमें रिसाइकिल की बजाय किस पर यूज स्ट्रेस देना चाहिए, रीयूज पर। ओके, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड हम क्या कर सकते हैं मैन गार्बेज को वो करने के लिए, हम करते हैं लैंडफिल मेथड। लैंडफिल में अब हमने पढ़ा था ना कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जैसे घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए जो नीचे हम, आपने देखा होगा कि हम उसमें मिट्टी डालते हैं, जब हम घर बनाते हैं तो उसको ऊपर करने के लिए क्या करते हैं, मिट्टी डालते हैं। अगर हम उसकी बजाय, नीचे हमारा दब जाना है, अगर हम उसके बजाय उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का यूज़ करें, तो एक तो हमारा गार्बेज यूज़ हो जाएगा और जो हमारा पर्पस है वो भी सोल्व हो जाएगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट थर्ड स्टेप, दैट इज़ द लैंडफिल। लास्ट इज द इंसिनरेशन प्रोसेस। Incineration means the burning of the waste at a very high temperature. Burning of the waste at a very high temperature that will produce the ashes. हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर इसको वो करते हैं। अच्छा, आपके मन में इस टाइम ये बात आ रही होगी कि अगर हम बर्न करते हैं तो फिर उसमें धुआं इसमें से प्रोड्यूस होगा, स्मोक इसमें से प्रोड्यूस नहीं होती। मशीनरी में ये काम किया जाता है, उसमें बहुत हाई टेम्परेचर यूज़ किया जाता है, जिससे सिर्फ उसमें बर्न हो जाता है और उससे क्या प्रोड्यूस होती है, ऐश। एंड दैट ऐश इज़ यूज्ड फॉर द लैंड फिलिंग पर्पस। इस तरह से जो हमारा गार्बेज है, हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं प्रॉपरली। तो ये आगे है डिस्पोजल कप्स। आपने देखा होगा कि पहले जो थे प्लास्टिक्स के यूज़ किए जाते थे, अब उन्होंने क्या शुरू कर दिए हैं, जो डिस्पोजेबल है, डिस्पोजेबल कप्स यूज़ ट्रेन में किए जाते हैं, ताकि उनको क्या किया जा सके। डिस्पोजेबल कप्स जो हैं वो प्लास्टिक के नहीं बने होते, वो मिट्टी के भी बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उससे एक तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और उसको बायोडिग्रेडेबल हैं, ताकि हम उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से यूज़ भी किए जा सकते हैं, या फिर वो एनवायरनमेंट में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। ये हमारा चैप्टर था आवर एनवायरनमेंट। बहुत इजी चैप्टर था। आप इस चैप्टर को एक बार थोरोली रीड कर लेना आज। उसके बाद कल हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं सारे आपको रिटर्न उसमें दे दूँगी और आपने वो सारे लर्न करने हैं, ठीक है। इसको आज आपने रिवाइज करना है। ओके स्टूडेंट्स।